Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. So today I am going to discuss about important revision notes of breeding and egg production of exotic fishes. Guys, this topic is very important for your upcoming fisheries JRF exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. So first we will see about the silver carp. So silver carp female attain the maturity at the age of 2 to 3 years. In different countries it attains the maturity in different years. So when it is 2 to 6 kg, it matures in South China. In 4 to 5 years it attains maturity in Central China, and in 5 to 6 years Northeast China, 2 to 3 years in Taiwan, and 6 to 9 years in Romania. So these are the maturity ages or the stages at which the silver carp mature in different countries or different part of China. Male usually become mature 1 year earlier than female. Keep in mind, male जो होते हैं सिल्वर कार्प में वो 1 year earlier हमारे फीमेल से मैच्योर हो जाते हैं. देन द ग्रास कार्प अटेन द मैच्योरिटी इन 4 to 5 years at size of 6 to 8 kg in Central China, 6 to 7 years in Northeast China, 4 to 5 years in Taiwan, and 4 to 7 years in Europe, 8 to 9 years in Siberia, Ukraine, and then 10 years in Moscow. In India, Japan, silver carp brought in India, the silver carp is brought from the Japan. Maturity in and the grass carp brought from the Hong Kong, matured within 3 years. So जो हमारी जापान से सिल्वर कार्प लाई गई इंडिया में वो मैच्योर होती है 2 years में, और जो ग्रास कार्प लाई गई हांगकांग से वो मैच्योर होती है, अपनी मैच्योरिटी अटेन करती है 3 years में, वेयर मेल अटेन मैच्योरिटी 1 year earlier. As you have already known, the male usually become mature 1 year earlier than female. Then ova measures about 1.2 to 1.3 mm in dia. Fecundity is 80 ova per gram of body weight in grass carp and 160 to 170 ova per gram of body weight in silver carp. Keep in mind guys, 80 ova per gram of body weight in grass carp and 160 to 170 ova per gram of body weight in silver carp. Then the breeding season of grass carp is from April to August in Central China, and May to July in Taiwan, then March to August, keep in mind March to August in India. For grass carp, breeding season in India is March to August. Then the silver carp attain breeding season in April to July in China, and June to July in Japan, and May to July in India. Keep in mind guys, in India May to July is a breeding season for silver carp. By hypophytation, first time of silver carp breeding is done in 1995 in China, and grass carp in 1958. तो फर्स्ट टाइम हाइपोफाइसेशन से ब्रीडिंग हुई थी सिल्वर कार्प की in 1995 एंड ग्रास कार्प की 1958. नेक्स्ट, ओवा of silver carp are bluish in color and measures 1.2 to 1.3 mm in dia. Keep in mind, ओवा जो है हमारे सिल्वर कार्प के वो ब्लूइश कलर में होते हैं और मेज़र करते हैं 1.2 to 1.3 mm in dia. वाटर हार्डनिंग कंप्लीट विद इन 30 मिनट. जो हमारी सिल्वर कार्प में वाटर हार्डनिंग होती है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. वाटर हार्डन एग मेजर्स 4.2 टू 4.7 mm. उनका साइज़ जो होता है हमारा वाटर हार्डनिंग के बाद बढ़ जाता है, जैसे कि 1.2 टू 1.3 mm डाया होता है हमारा जब वाटर हार्डनिंग से पहले, और जब वाटर हार्डनिंग हो जाती है तो 4.2 टू 4.7 mm डाया हो जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड, कीप इन माइंड गाइस, इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में. सो सिल्वर कार्प का हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है 18 to 20 hours एट टेम्परेचर 27 to 29 डिग्री सेल्सियस.
18 to 20 hours at 27 to 29 डिग्री सेल्सियस. ओके. देन नेक्स्ट हमारा है एग्स ऑफ ग्रास कार्प आर येलो टू डीप गोल्डन ब्राउन इन कलर. सो हमारा सिल्वर कार्प का क्या था, ब्लूइश कलर होता है, जबकि हमारा ग्रास कार्प का कैसे कलर होता है, येलो टू डीप गोल्डन ब्राउन कलर. एंड मेजर्स 1.2 to 1.3 सेम साइज होता है. वेयर इज अबाउट वाटर हार्डनिंग के बाद भी उनका साइज सेम ही रहता है सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प के एग्स का. सो सिल्वर कार्प में 4.2 to 4.7 होता है, वेयर एज ग्रास कार्प में हमारा 4.5 होता है. एंड देन इंक्यूबेशन पीरियड इसका थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम रहता है हमारा सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प में एज 20 आवर्स फॉर 27 to 29 डिग्री सेल्सियस पे. 2 ponds of 0.1 hectare for grass 0.1 hectare for grass carp yearling of 0.4 to 0.5 kg along 4 carp species katla, rohu, mrigal, silver carp are stocked in ratio of 70:10:10:7:3. ओके गाइस, तो हमारे जो 2 पॉन्ड्स होते हैं, हम जब हमारा ब्रीडिंग प्रॉपरली हो जाती है उसके बाद जब हमारी स्टॉकिंग होती है तो स्टॉकिंग के लिए हम 0.1 हेक्टेयर के 2 पॉन्ड्स लेते हैं ग्रास कार्प के ईयरलिंग्स को स्टॉक करने के लिए, और इसको स्टॉक किया जाता है विथ 4 अदर कार्प्स जो हमारी इंडियन कार्प्स हैं या फिर इंडिजीनियस कार्प्स हैं, जैसे कि रोहू, कतला, नैन. इनके साथ हमारा ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प को स्टॉक किया जाता है. एंड द स्टॉकिंग रेशियो इज अराउंड 70:10:10:7:3 and stocking density should be 1000 kg per hectare. फीड क्या दिया जाता है, सोयाबीन, राइस ब्रान, फिश मील एट द रेशियो ऑफ 10:5:4:1 एट 75% ऑफ क्रूड प्रोटीन दिया जाता है. 6 to 8% हमारा फैट होता है, क्रूड फैट होता है. 14 to 25% हमारा क्रूड फाइबर देना चाहिए. 14.25 टू ऐश देना चाहिए हमारा 13%. ओके. द फिश शुड बी फीड एट द रेट ऑफ 3% ऑफ बॉडी वेट पर डे. 3% ऑफ बॉडी वेट हम लेते हैं इसमें. ऑलवेज क्या करना है हमें, फीडिंग जो है वो 3% ऑफ बॉडी वेट हमें पर डे में फिश को देनी है. देन द ग्रास कार्प फीड विद द एक्वेटिक वीड्स हाइड्रेला and in that the crude protein is 14%, then crude fat is 6.5%, ash is 19.3% and crude fiber is 6.9%. breeding notice within a 9 hours after the OAPRIM administration. OAPRIM हमारा क्या है, हमारा ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला एक इंजेक्शन है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के 9 आवर्स के बाद हमारी ब्रीडिंग नोटिस कर सकते हैं हम. देन हमारी कॉमन कार्प इज़ अ थर्ड exotic carp. It grows in cold and the common carp scientific name is Cyprinus carpio. It grows in cold water as well as in warm water and tolerate up to salinity up to 7 ppt. तो जो हमारा कॉमन कार्प है वो हमारी कोल्ड वाटर एज वेल एज वार्म वाटर में भी रह सकती है और ये जो है टॉलरेट कर सकती है सैलिनिटी अप टू 7 ppt. इट इज़ ओमनीवोरस फीड ऑन फीड आइटम्स एज पर अवेलेबिलिटी. सो जो कॉमन कार्प है हमारी वो फीड करती है मटेरियल पे एज द अवेलेबिलिटी इज़ देयर. वो कुछ भी खा सकती है, ओमनीवोरस फीडर है, वो फीडिंग किसी भी चीज़ पे कर सकती है. देन कॉमन कार्प कंट्रीब्यूट अबाउट 7.98% ऑफ टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एंड 14.2% of total freshwater fishes cultured in year 1998. So this data is from 1998. 3 varieties of common carp is there. Cyprinus carpio communis, which is scale carp. Cyprinus carpio specularis, which is mirror carp. Cyprinus carpio न्यूडस विच इज़ लेदर कार्प. कीप इन माइंड ये आपसे साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं कि लेदर कार्प का साइंटिफिक नेम क्या है या फिर स्केल कार्प का क्या है. टेम्परेचर इसके लिए 18 to 35 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कोल्ड वाटर में भी रह सकती है और वार्म वाटर में भी रह सकती है. फीमेल मैच्योर विद इन अ 6 to 8 months.
मेल मेच्योर अबाउट 2 months अर्लियर। वहाँ पे ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प में 1 year अर्लियर होता है, यहाँ पे 2 months अर्लियर है। हिली एरिया इट टेक्स अबाउट 1 year टू अटेन मेच्योरिटी। सो जो हमारे हिली एरियाज हैं वहाँ पे 1 year तक हमारा लगता है मेच्योरिटी में आने में। यूरोप टेम्परेचर एट 15 to 18 डिग्री सेल्सियस 3 to 4 years लगेंगे मेच्योरिटी में। यूएसएसआर 17 to 19 डिग्री सेल्सियस पे हमारे 2 to 5 years लगेंगे। इंडोनेशिया टेम्परेचर 19 to 30 डिग्री 1 to 1.5 year लगेगा। इन इंडिया कॉमन कार्प टू पीक ब्रीडिंग सीजन्स आर देयर, जनवरी टू मार्च एंड जून टू अगस्त। कीप इन माइंड, 2 हमारे पीक ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, जनवरी टू मार्च एंड जून टू अगस्त। Large size of testes in male are found. Right testes usually smaller than left. Keep in mind, जो हमारे कॉमन कार्प है उसमें टेस्टिस जो होती हैं वो बिगर साइज में होती हैं और जो राइट वाली होती है वो स्मॉलर होती है लेफ्ट वन से। मेल यूजुअली स्मॉल इन साइज देन फीमेल, मेल जो होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं देन फीमेल। अ मेच्योर टेस्टिस फ्रॉम 20 to 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सो जो मेच्योर टेस्टिस होती हैं वो 20 to 30% होती हैं टोटल बॉडी वेट के। Fecundity also varies from age to size of female. Oocyte varies from 1 to 1.4 mm. So oocyte का जो diameter है 1 to 1.4 mm होता है। Fecundity 1,80,000 per kg of fish. 1,80,000 per kg of fish. Yolk is yellow to light brown in color. Eggs sticky and attached to floating meat. So eggs जो होते हैं ये sticky होते हैं कॉमन कार्प में। कीप इन माइंड, ये पूछा जाता है। एग्स जो होते हैं वो कॉमन कार्प में स्टिकी होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to half days एट 12 डिग्री सेल्सियस, 3.5 days इन 20 डिग्री सेल्सियस, 2 days इन 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो इन डेबिश which is Europe and Indonesia, grass grown on the bottom of dry ponds with a height of 40 centimeter to attach the sticky eggs of common carp. Europe breeds middle of May to July. So यूरोप में हमारी मिडिल मई टू जुलाई तक हमारी ब्रीडिंग होती है कॉमन कार्प में। सैनिडिस इंडोनेशिया में स्पॉनिंग टैंक्स विद एग कलेक्टर कॉल्ड काकाबान्स। काकाबान्स हमारे इंडोनेशिया में लगाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि काकाबान कहाँ यूज़ होते हैं कॉमन कार्प के एग्स को स्टिक करने के लिए, तो काकाबान्स आर यूज्ड इन इंडोनेशिया। काकाबान्स हॉर्स हेयर लाइक फाइबर होते हैं। इंजेक्ट प्लांट कहते हैं उसे, सोक्ड इन अ वाटर फॉर 5 days अरेंज इन टू अ लेयर ऑफ 1.2 to 1.5। सो इंजेक्ट प्लांट होता है, उसके जो हेयर लाइक फाइबर्स होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर उसमें सोक किया जाता है, वाटर में सोक कर दिया जाता है 5 days के लिए, जिससे कि वहाँ पे अटैच हो सके कॉमन कार्प के एग्स। चाइना में क्या होता है, चाइनीज़। सो प्लांट लाइक सेरेटोफाइलम इकॉर्निया यूज्ड एज अ एग कलेक्टर। इन इंडिया में हाइड्रिला इज यूज्ड। हाइड्रिला एग कलेक्टर ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रिला इज रिक्वायर्ड फॉर 1 kg वेट ऑफ फीमेल। सो 1 kg फीमेल के लिए हमारा 2 kg ऑफ हाइड्रिला यूज़ होता है कि वहाँ पे एग हमारे अटैच हो सकें। इट होल्ड्स एटलीस्ट 1 kg ऑफ एग्स कलेक्टर एंड हैव 4,000 to 10,000 एग्स। 4,000 से 10,000 एग्स हमारे 2 kg ऑफ हाइड्रिला पे अटैच हो जाते हैं। फीमेल इंजेक्टेड विद 2.5 to 3.5 mg ऑफ पिट्यूटरी पर kg ऑफ बॉडी वेट। फीमेल जो है हमारा इंजेक्ट होती है ब्रीडिंग के लिए 2.5 to 3.5 mg of pituitary per kg of body weight. It takes about 8 to 26 hours for female to become a ripen. Salt carbamide solution not only helps in removing the stickiness but also increase the viability or lifespan of sperm. So जो हमारे स्पर्म है उनकी स्टिकीनेस को हटाने के लिए सॉल्ट कार्बामाइड यूज़ किया जाता है और ये वाइबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है स्पर्म की। Sperm remain active for 20 to 25 minutes in carbamide solution or fresh water, viable only for maximum 2 minutes. So carbamide में sperm हमारा 20 to 25 मिनट तक हमारा एक्टिव रहता है, जबकि हमारा फ्रेश वाटर में जो होता है वो सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए वाइबल रहता है। मिल्क पाउडर ऑल्सो रिमूव कॉमन कार्प एग्स stickiness. 20 grams of full cream milk powder, fat content is 26 to 28%, dissolved in 1 liter of water
and used for treatment of fertilized eggs treated for 45 minutes. So milk powder भी हमारा stickiness हटाने के लिए यूज़ होता है. full जो cream milk powder होता है वो यूज़ करते हैं in 1 kg of water, and जो ये हमारे fertilized eggs होते हैं इनको treat किया जाता है for 45 minutes. Incubation pituitary extract for 2 to 3 mg per body weight, और ओवाप्रिम यूज़ होता है एट द रेट ऑफ 1 to 2 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट. सो हमारा ओवाप्रिम होता है 1 to 2 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, वेयर एज पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट 2 to 3 mg पर बॉडी वेट. वाटर डेप्थ हमारी 1.5 to 2 फीट हम रखते हैं फॉर द कॉमन कार्प. Egg hatched out after 30 to 48 hours depending on the temperature. So 30 to 48 hours में हमारी fertilization eggs जो है वो hatch out होते हैं after 30 to 48 hours depending on the temperature. Spawning recovery high as 90 to 92% in this system. Induce same fish breed 4 times in years, 2 times pre-monsoon month March to May and at an interval of 40 to 45 days, and 1 in a late monsoon months August to September and the monsoon June to July. So 4 बार हमारी जो है कॉमन का वो इंड्यूस ब्रीडिंग होती है. उसमें फर्स्ट प्री मानसून में होती है मार्च टू मई में, एंड देन हमारा लेट मानसून में होती है अगस्त टू सितंबर, एंड देन मानसून में हमारा जून टू जुलाई. Virgin fish not suitable for the breeding. Stocked at the rate of 100 kg per hectare. Feed with the mineral and vitamin at the rate of 1 to 2% of body weight. So प्री मानसून में हमारी कितना अर्ली मार्च में होती है, ईल्ड जो होती है 0.5 to 0.6 लाख स्पॉन पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है, और 40 to 45 डेज़ के बाद फिर होता है तो 1 to 1.5 लाख स्पॉनिंग पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है. मानसून में हमारा 40 to 45 डेज सेकेंड स्पॉनिंग होती है जून टू जुलाई में, एंड 1.5 to 2 लाख पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है. और जबकि लेट मानसून में आई गेस सबसे कम होता है 0.4 to 0.5 kg पर बॉडी ऑफ वेट. रेशियो ऑफ मिल्ट एंड डाइल्यूट इज़ अबाउट 1:4. कीप इन माइंड गाइस, ये पूछा जाता है. और जो डाइल्यूट होता है वो हमारा क्रायोप्रोटेक्टेंट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है डाईमिथाइल सल्फोमाइड एंड ग्लिसरॉल क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं. LH क्या होता है हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है. HCG होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन. रिकमेंडेड डोज ऑफ ओवाप्रिम इज 0.5 mg पर kg ऑफ फिश. ओवापिल डोज इज 1 to 2 pellet per kg of fish in rohu and mrigal. Brood fish rising and rearing tank should be 0.2 to 1 hectare. Depth should be 2 to 2.5 meter. Nursery pond should be 0.2 to 0.06 hectare to 1.1 and the depth should be 1 to 1.5 meter. Thanks for watching guys. Do subscribe to my channel if you are preparing for upcoming ICR fisheries exam and other fisheries related exam. You can also follow me on Instagram. There I am uploading different types of revision notes, and also on Telegram too.